Dear students, today we discuss on the next topic prism and refraction through the prism. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसी प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रिज्म को कंसीडर करते हैं कि ये ए बी सी एक प्रिज्म है। प्रिज्म होता क्या है? एक होमोजीनियस मीडियम दैट बाउंड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारे ए बी और ए सी। इनके द्वारा एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये वाला अंदर जो मीडियम है ये होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो इसके द्वारा बाउंड है। तो प्रिज्म की जब डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? इट इज द होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट medium bound by two refracting surface AB and AC। AB and AC ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, इसको बाउंड करते हैं। एक टॉपिक होता है हमारा प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल एक्चुअल में क्या है? ये प्रिज्म एंगल होता है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का। इट इज द एंगल बिटवीन टू refracting surface। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म एंगल कहेंगे। हमारा जो अब यहाँ है एक चलेगा डेविएशन एंगल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। डेविएशन एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल between incident rays and emergent rays in the refraction of prism, उसको हम डेविएशन एंगल बोलते हैं। डेविएशन एंगल एक्चुअली क्या है कि जब हम इंसिडेंट रेज इस पे फॉल करेंगे, जैसे हम डायग्राम में देखते हैं कि हमने मान लिया ये एक इंसिडेंट रेज है, पी क्यू नाम दिया इसका, ये क्यू पे स्ट्राइक करेगी। इट इज इंसिडेंट रेज, इसका नाम दिया मैंने इंसिडेंट रेज। After refraction at surface AB, it bend toward the normal because this is the rarer medium and this is denser and this is also rarer। ये एयर है, यहाँ इधर भी एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और ये प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया n2 और यहाँ लिख दिया n2 greater than n1। It means that prism have the high refractive index as compared to the surrounding medium. So prism act as the denser medium and surrounding air act as the rarer medium. So first we take the point from where we draw the normal. This is the point O, that is in center of this triangular prism. We draw normal from this angular prism as like this. This is the normal we have drawn here. This is the normal and this angle is known as the incident angle.
or angle of incidence. If there is no change in medium, mean there is air and there is no prism present in the path of this incident rays, then this light goes as like this. This light goes as like this path. But there is prism and prism have the refractive index greater than the air. So light goes from rarer to denser. It bent toward the normal and change its path is along this. This is the refractive angle R1 and this is the first deviation angle del 1. Upper angle is deviation angle because light bend or light change its path by the angle del 1, and this is the refracting angle of refraction. Again we see that this point on the surface of AC, this point is known as R. R be the point on the surface AC. AC is also refracting surface. ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका मतलब यहाँ से भी मीडियम चेंज हुआ है, और जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट अपने पाथ को चेंज करेगी, और यहाँ से भी फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस आर पॉइंट के ऊपर। यहाँ से ये हमारा एक नॉर्मल है जो हमने ओ पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया है। इस नॉर्मल का नाम n1 रख दो और इसको n2 कह सकते हैं हम, कैपिटल N2, स्मॉल n रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्शन। Again we draw the normal at the point R and light also change its path when light goes from denser to rarer. जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो दूर हटेगी तो ये इसका पाथ कौन सा हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा। दिस पॉइंट इज S. दिस इज अगेन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, दिस एंगल इज R2 and this angle is emergent angle E, or this ray known as the emergent rays. So this is the diagram how refraction of this incident rays take place at two different refracting surface AB and AC. In this way refraction take place. Incident rays in the presence of this prism move as like the emergent rays, but there is much deviation. We increase this rays in backward direction as like this, as like this. This angle is deviation angle and this angle is small deviation by second surface. Upper angle is deviation. We give the name of this angle point is K. This is N2 refractive index and this is prism angle. This is the diagram how refraction take place in this prism and how incident rays get up in the form of emergent rays. And now we draw the refraction through prism. It is important to note that how this refraction take place and different angle correlate as like this. Question is relation between angle of incidence I, comma, emergent angle E, comma, deviation angle del, and prism angle A as
I plus E is equal to A plus del. This is the important relation. Here we prove how they are related. Proof is like this. Proof. Here we are proving this relation with the help of geometry. First of all, we start at the triangle of intermediate triangle KQR. स्टार्ट हम इस, जब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप प्रिज्म के थ्रू आप रिफ्रैक्शन ये प्रूफ कीजिए कि ये एंगल जो आपस में है ये इस तरीके से रिलेट होते हैं, प्रूफ ऑफ दिस रिलेशन। तो आप सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाएंगे। जैसे ही ऐसा डायग्राम बने आपका, उसके बाद आप इसका स्टार्टिंग कहां से करें प्रूफ के लिए। सबसे पहले हम ज्योमेट्री यूज करेंगे, और ज्योमेट्री भी कौन सी यूज करेंगे, एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। इन ट्रायंगल KQR, ये हम ट्रायंगल लेके चलेंगे प्रूफ में, जो ये है KQ और R, ये वाली ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि डेल इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेल एंगल कौन सा है, मैं इस, अगर वहां आपको दिखाई नहीं दे रही तो मैं अलग से इस ट्रायंगल को बना देता हूं। ऐसे है ये ट्रायंगल, इस तरीके से, ये K है, ये Q है, ये R है, ये एंगल आपका del 2 है, ये एंगल del 1 है, और ये आपका del है। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल must be equal to sum of two interior angle. This is the exterior angle and these are two interior angle. So with the help of geometry we can write as like this, del is equal to this. Here we write exterior angle of triangle are equal to sum of two इंटीरियर एंगल। इस ज्योमेट्री का हमने यहां यूज किया है कि कोई भी ट्रायंगल होती है उसका जो बाहर का एंगल होता है वो उसके अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम देके चल पड़े। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम नेक्स्ट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। हमें इस चीज का पता है कि फ्रॉम डायग्राम एंगल I इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल del 1। देखिए मैं वहां, हम इसको मैं यहां ऐसे बना के दिखा देता हूं। ये आपका नॉर्मल था, ये ऐसे था। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। और किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल आपका I है, ये Q पॉइंट है, हम यहाँ की बात करते हैं इस पॉइंट की। ये एंगल I है और इधर के एंगल को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक R1 है, एक del 1 है। लेकिन चाहे 2 में तोड़ो, 3 में तोड़ो, चाहे 4 पार्ट में तोड़ दीजिए आप, लेकिन अपोजिट एंगल तो है ना, ये दोनों का सम है वो I के बराबर होगा। मैंने यहाँ लिखा I बराबर R1 प्लस del 1। तो हम इसकी ज्योमेट्री के लिए किस चीज को यूज करेंगे, इसकी ज्योमेट्री के लिए हम यूज करेंगे कि जो हमारा अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल, यहां से हम del 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। del 1 किसके बराबर हो गया, I माइनस R1। del किसके बराबर हो गया, I माइनस R1। सिमिलर हम ऐसे यहां निकाल लेंगे, सिमिलर ये एंगल देखिए E एंगल है, वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 एंगल प्लस del 2 एंगल। और यहां से del 2 की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, E माइनस R2। जिस तरीके से हमने ये अप्लाई किया है वैसे ही उसको अप्लाई कर देंगे। और जब ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन में डेल 1 और डेल 2 दोनों एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे, और जब दोनों एंगल की पुट करेंगे तो हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू जब इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा डेल एंगल इज इक्वल टू, डेल 1 की वैल्यू है i माइनस R1, i माइनस R1 प्लस में डेल 2 की वैल्यू है यहां से e माइनस R2। तो ये हमारा हो गया डेल इज इक्वल टू आई और ई को इकट्ठा कर लें, आई प्लस ई, और ये R1 और R2 दोनों किसके हैं? माइनस के हैं, माइनस कॉमन ले लो तो ये बच जाएंगे R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। हम लगभग 50 से 60% काम कर चुके हैं, क्योंकि देखिए हमें प्रूफ करना आई प्लस ई मिल गया, डेल डेल मिल गया, R1 प्लस R2 को ए के बराबर अगर हम प्रूफ कर पाए तो हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम और ज्योमेट्री का प्रयोग करेंगे और फाइनल हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां के बाद हमारे पास अब बड़ा चैलेंज ये है कि जो ये एंगल है R1 और R2, इसकी वैल्यू a के इक्वल प्रूफ करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल OQR यूज करेंगे। इन ट्राइंगल OQR, ये है ट्राइंगल O Q और R, ये छोटे वाली ट्राइंगल मैं यहां बना देता हूं। इस तरीके से ये ट्राइंगल है, ये O है, ये R है, ये Q है। अगर आप एंगल देखें, ये एंगल है, ये एंगल है, ये R1 है, ये R2 है। हमें इस बात का पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस ज्योमेट्री को हम यहाँ यूज करें तो क्या बन जाएगा, एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। एक चीज और ले सकते हैं हम, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल कौन सी ले लें, ये ए क्यू ओ और आर, ए क्यू ओ आर, इस क्वाड्रिलेटरल का यूज कर लें। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके चारों एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 360। और चार एंगल कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल होते हैं, उनका सम है वो 360 डिग्री होता है। ये डिग्री है, ये 360 डिग्री। लेकिन हमें ध्यान ये देना है, O से Q ये ऐसे है आपका सरफेस A, ये B है, ये प्रिज्म है, इधर C है। तो O पॉइंट से यहां जब आपने डाला तो ये नॉर्मल डाला था, और इस पे भी जो नॉर्मल डाला वो, यानी इसका मतलब हुआ कि जो Q और R जो हमारे पॉइंट हैं, ये एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल है ये। तो इसमें रख सकते हैं एंगल A प्लस Q एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल O और R भी कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। ये बात यहां से समझ में आ गई होगी कि O से हमने Q को 90 और R भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल हैं। तो हम अगर इसको और सोल्व करें तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 90 और 90 कितना हो गया 180, और उस डायरेक्शन में लेके जाओगे तो 360 में से आप जब इसको माइनस कर देंगे तो आपको 180 वैल्यू प्राप्त होगी। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। अगर हम कंपेयर कर दें इक्वेशन 3 और 4 को तो हम पाएंगे कि जो हमारी इक्वेशन में देखिए, इसका लेफ्ट पार्ट आप चेक करें, थर्ड इक्वेशन का राइट पार्ट 180 है, फोर्थ इक्वेशन का भी राइट पार्ट 180 है। जब दोनों 180 हैं तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होंगे। और लेफ्ट पार्ट में देखें
तो ओ एंगल के इक्वल है, तो ए एंगल इनके बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस एंगल R2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाएगी हमें। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5th को सेकंड में पुट कर देंगे, पुट इनटू इक्वेशन सेकंड, देन क्या बन जाएगा, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ R1 प्लस R2 की वैल्यू ए रखोगे तो ये बन जाएगा, इस ए को इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया, डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, आई प्लस ई, ये हमने प्रूफ करना था। तो फाइनली हमारा क्या हुआ, ये अगर इसको आप थ्योरेटिकल लिखें तो डेल क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल प्लस प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों का सम आई प्लस ई, इंसिडेंट एंगल आई प्लस अमर्जेंट एंगल ई। ये प्रूफ हो गया हमारा। हम इस तरीके से प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल यानी आई प्लस ई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। और आपको क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका प्रूफ कीजिए, तो आप इस स्टेप से इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब हम जो प्रूफ करना चाहेंगे वो प्रिज्म फॉर्मूला बनाना है। हम क्या बनाना चाहेंगे, अब क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है यहां से कि आपके पेपर में ये आ सकता है कि डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। तो जब आपको डिराइव करना है प्रिज्म फॉर्मूला, तो उस समय आपको वो पहले वाला प्रूफ नहीं करने की जरूरत, आप यहां से उठाएंगे कि वी नो दैट डेविएशन एंगल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। हेयर आप रिप्रेजेंट करेंगे, हेयर डेल इज डेविएशन एंगल, आई इंसिडेंट एंगल, ई अमर्जेंट एंगल एंड ए प्रिज्म एंगल। अब यहां से क्या होगा कि फ्रॉम दिस इक्वेशन we can say deviation angle depend on angle of incidence I। हमें यहां से पता लगता है कि डेविएशन एंगल इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। सो वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन डेल एंड आई, draw graph I as shown in diagram। अगर हम ग्राफ बनाएं डेल और आई के बीच में, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, हम ऐसे बनाएंगे, इधर हमने आई लेंगे और इधर हम डेल लेंगे। हमने क्या किया है कि इंसिडेंट एंगल लिया, जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इंसिडेंट एंगल 30 से 60 के बीच लेना होता है, क्योंकि 30 से कम और 60 से ज्यादा लेंगे तो PIR के कारण वो बाहर रेज नहीं आती, इमरजेंट रेज हमें दिखाई नहीं देती। तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ डेविएशन को नोट करते जाएंगे और उसके बीच ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो यहां हम देख पाएंगे कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे डेविएशन एंगल है वो मिनिमम हो जाएगा, ये डेल m
यानी पहले जैसे जैसे हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो डेविएशन एंगल डिक्रीज होता है। एक स्टेज के बाद और अगर इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएं तो डेविएशन एंगल राइज करेगा। तो ये जो सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे नीचे का पॉइंट है, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन कंडीशन। और ये कंडीशन है आई इज इक्वल टू ई की कंडीशन है, यूनिक वैल्यू होती है ये। अगर आई और ई इक्वल हो जाएं तो उस समय आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगी कंडीशन। फ्रॉम ग्राफ we get unique value of deviation angle at its minimum. It is called minimum deviation angle. Condition for it is, इसकी कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन की? इफ डेविएशन एंगल बिकेम del m then I became E. I और E क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दो चीज ध्यान रखनी है, I और E इक्वल होने का यही मीनिंग है कि जो ये रेज है Q से R, ये पैरेलल टू बेस हो जाती है। जब भी रिफ्रैक्शन होगा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो ये रेज है क्यू आर, ये पैरेलल टू बेस हो जाती है। और R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे, हम उसको R मान लें। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। अगर I और E बराबर हैं तो ये जो दो रिफ्रैक्शन हुए थे R1 और R2, इनकी वैल्यू भी बराबर होगी। तो R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, हमने उसको R मान लिया। बट ए एंगल किसके बराबर था याद हो तो? ए एंगल था R1 प्लस R2 के। और ये दोनों वैल्यू अगर R R हैं तो ये क्या बन गई? R प्लस R, 2R हो जाएगा। और यहां से आप अगर वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू A/2 हो जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन को उठा के ले आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी। डेल को क्या रख दें? डेल m की कंडीशन है। I और E क्या है? दोनों बराबर है। तो अगर ये I है तो E को भी I रख दो माइनस A। अब यहां क्या बन गया? डेल m 2I माइनस A को इधर ले आओ, डेल m प्लस A इज इक्वल टू 2I। और I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 2 को इसके नीचे ले आओ, यहाँ 2 ले आए, ये I इंसिडेंट एंगल हो गया। हमारे पास दोनों वैल्यू है I और E की। जब ये दोनों वैल्यू आ गई तो प्रिज्म फॉर्मूला बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना है बाय यूजिंग स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है? स्नेल लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1 को क्या लिख देंगे? N क्या है यहाँ पे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। I और R की वैल्यू यहां से पुट कर दो, I की वैल्यू यहां से, R की वैल्यू यहां से। इसको सेकंड इक्वेशन कह दो, इसको थर्ड कह दो। तो वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन से पुट करें तो क्या बन जाएगा? N इधर ले आया मैं, साइन
आई की वैल्यू रखेंगे हम पहले। आई की वैल्यू क्या है, ये डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और बटे में साइन आर की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 2। ये है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। इसको हम क्या कह देंगे, प्रिज्म फॉर्मूला। इट इज प्रिज्म फॉर्मूला। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, तो आप इस तरह सा पार्ट लिखेंगे और आपका प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अगर यही प्रिज्म आपका थिन प्रिज्म हो तो फिर कैसे करेंगे। अब हमने क्या है, हमने अभी प्रिज्म फॉर्मूला बनाया और प्रिज्म फॉर्मूला ये था कि n इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और साइन ए बाई 2। यहाँ ए प्रिज्म एंगल है, डेल एम आपका मिनिमम डेविएशन एंगल है और n यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यही फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए आ जाए तो फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, ये जनरली आजकल ट्रेंड है ऐसे क्वेश्चन पूछने का। थिन प्रिज्म का मतलब क्या है, यहां लिखेंगे फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म एंगल आर सो स्मॉल, एंगल आर सो स्मॉल देन साइन ऑफ थीटा अप्रोचेस टू थीटा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जब एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है। तो यहां भी यही कंडीशन लगा देंगे हम। इस इक्वेशन को एक कह दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, ये थीटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो डेल एम प्लस ए अपॉन 2 हो गया। ये भी साइन ऑफ एंगल है, एंगल छोटा होगा तो साइन एंगल एंगल के बराबर हो जाएगा ए अपॉन 2। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए की मल्टीप्लाई ए एन से हो जाएगी तो एन ए, ये हो गया डेल एम प्लस ए। डेल एम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल एम क्या हो जाएगा, इस ए को इधर ले आओ, एन ए माइनस ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लेंगे तो ये बन गया एन माइनस 1 इंटू ए। तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला है डेल एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, इसको बोलते हैं हम प्रिज्म फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। ये है थिन प्रिज्म के लिए प्रिज्म फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। यहाँ एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और ए आपका क्या हो गया, प्रिज्म एंगल हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ बने तो हम इस टॉपिक को यहाँ सोल्व कर सकते हैं।